Hello students, today in this class we are going to learn for class 8 NCERT Maths chapter 5 data handling exercise 5.2 question number 1. A survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. Given pie chart shows the findings of this survey. देखो एक सर्वे कंडक्ट करा गया है, उसमें टाइप ऑफ म्यूज़िक किसको कौन सा टाइप ऑफ म्यूज़िक अच्छा लगता है उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है. So in this pie chart you can see there are different sectors made of the people who like different type of music. There are different kinds of music and they are liked by the different percentage of एग्जाम्पल. अगर यहाँ पे हम देखें तो जैसे लाइट म्यूज़िक है दैट इज़ लाइक 40% of people. Then semi-classical is liked by 20% of people. Classical that is liked by 10% of people. Folk that is liked by 30% of the people. So this was all about the liking. Now what you have to do is from the pie chart answer the following questions. On the basis of that you have to answer certain questions. If 20 people like classical music, how many young people were surveyed? What they are telling, 20 people liked classical music. So 20 people liked classical music. It means here classical is 10%. 10% is equal to 20. See how we have to do this kind of sums. They are telling, first of all, they are telling 20 people liked classical music. So here we will note down the data. 20 people likes classical music. 20 people like the classical music, and according to the pie chart we can see that 20% means what? It is you have to go for classical music. Where is classical music? Here it is classical music, and how much percentage is given? 10% is given. So 10% means how many people? 20 people, because this 10% is of classical music. So 10% according कितने people हो गए? क्वेश्चन में दिया है कि 20 people को क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है और पाई चार्ट के हिसाब से वो कितना है? 10% है. तो 10% इज इक्वल टू 20 people. Then if 10% is equal to 20 people, then 100% is equal to how much people? Because they are asking you that how many people are surveyed. It means you have to find out the total number of people. For finding out the total number of people you have to find out the 100% of the people. तो हमें 10% का वैल्यू पता है 20 है, तो 100% का कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 100 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 10. 10 ones are 10, 10 twos are 20. 100 twos are 200. It means total people surveyed is 200. This is what? Total people surveyed. Okay, this is total people surveyed. So this is how you have to find out. This is very easy way to find out the number of people. Let's go for the second question. Which type of music is liked by the maximum number of people? सी यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा म्यूज़िक है जो बहुत लोगों को पसंद है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल को पसंद है. तो ऐसा तो आपको यहाँ पे ग्राफ में से देखना होगा. जिसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज होगा ना वो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद है. तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज हमारा किसका है? लाइट का है. सो लाइट म्यूज़िक है वो ज़्यादा लोगों को पसंद है. सी इसका 20% है, क्लासिकल 10%, फॉक 30% एंड लाइट इज़ 40%. इट मीन्स लाइट इज़ liked by many number of people, maximum number of people. So यहाँ पे लिख दिया हमने maximum number of persons like light music. Then next question, if a cassette company were to make 1000 CDs, how many of each type would they make? Fine. So what we have to do in this question? They are telling that if a cassette company were to make 1000 CDs, how many of each type would they make?
So see, in this type of have to do, you know the total number of CDs is 1000. Okay, and we have the data total CDs. We will write here like this: total CDs is 1000, and percentage we will write down. See, first of all we will write down for semi classical. Semi classical, how much percentage of people like semi classical? 20%. So we will calculate for semi classical the number of CDs distribution. सबको CD डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितने CDs चाहिए होंगे? तो 20% को सेमी क्लासिकल पसंद है, तो आपको क्या करना होगा? 20% ऑफ 1000. यू हैव टू फाइंड आउट लाइक दिस: 20% ऑफ 1000. 1000 CDs need to be distributed among these people who like the music. तो सेमी क्लासिकल जो है वो 20% को पसंद है, तो 20% ऑफ 1000 हम करेंगे, क्योंकि 20% में आपको डिवाइड करना है 1000 CDs को. ओके, मतलब 1000 CDs आपको 100% में डिवाइड करना है, लेकिन 20% को सेमी क्लासिकल पसंद है, तो आप 20% ऑफ 1000 करोगे. सो क्या हो जाएगा? 20/100. 20% मीन्स 20/100 मल्टीप्लाई 1000. 0000 कैंसल. 20 10 कितना आ जाएगा आपका? 200 आ जाएगा. सो 200 CDs हम 20% में डिवाइड करेंगे. उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट कौन सा है? क्लासिकल. क्लासिकल जो है वो कितने परसेंटेज ऑफ पीपल को पसंद है? 10%. तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10%. 10% ऑफ 1000. अगेन हमें CDs निकालनी है ना, कि 1000 CDs में से कितनी CDs जो है वो 10% पीपल में डिस्ट्रीब्यूट होगी. तो क्या करेंगे? 10/100 मल्टीप्लाई 1000. 0 and 0 कैंसल. 10 10 100. तो ये 100 CDs जो है आपकी, ये 10% पीपल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. देन हम बात करेंगे फॉक म्यूज़िक. देखो, फॉक म्यूज़िक कितना है? 30% है. सो 30% ऑफ 1000. 30/100 मल्टीप्लाई 1000. 0 and 0 कैंसल. 300 CDs. यानी 300 CDs will get distributed in the 30% of the people. Then last one is what? Light music. लाइट म्यूज़िक कितना परसेंटेज है आपका? 40%. सो लाइट म्यूज़िक 40%. 40% ऑफ 1000. 40/100 मल्टीप्लाई 1000. 0 0 कैंसल. 400 CDs. 400 CDs will get distributed in 40% of people. So in this question we have seen that 1000 CDs को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है. सेमी क्लासिकल, क्लासिकल, फॉक म्यूज़िक और लाइट म्यूज़िक जितने परसेंटेज ऑफ पीपल को पसंद है, उनमें आपको 1000 CDs को डिस्ट्रीब्यूट करना था. तो उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो हमने निकाल लिया. सेमी क्लासिकल जो है, सेमी क्लासिकल, ठीक है, सेमी क्लासिकल 20%, तो 20% ऑफ 1000, क्योंकि टोटल CDs कितना है? 1000. 20/100 मल्टीप्लाई 1000. 200 CDs. देन क्लासिकल, जिनको क्लासिकल पसंद है वो कितने हैं? 10%. 10% ऑफ 1000. 10/100 मल्टीप्लाई 1000, दैट इज़ 100 CDs. देन फॉक म्यूज़िक, जिनको फॉक म्यूज़िक पसंद है वो कितने हैं? 30% है, तो 30% ऑफ 1000. 30/100 मल्टीप्लाई 1000, 300 CDs. देन लाइट म्यूज़िक, लाइट म्यूज़िक जिसको पसंद है वो कितने हैं? 40%. 40% ऑफ 1000. 40/100 इज मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 400 CDs. अब देखो, आप इन सबको प्लस करोगे ना, 200 को प्लस 100 को
plus 300 plus 400. If you will add these, you will get what? 1000. 200 plus 100, 300. 300 plus 300, 600. 600 plus 400, 1000. It means our division is proper. हमने proper तरीके से CDs को divide सब में कर दिया. So this was all about question number 1. Let's go for question number 2. A group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the 3 seasons rainy, winter and summer season. एक ग्रुप है 360 पीपल का, उनको वोट करना है उनके फेवरेट सीजन्स के लिए. उनके फेवरेट सीज़न के लिए तो सीजन्स कितने हैं हमारे पास? समर, रेनी एंड विंटर सीजन. फाइन. तो अभी जो वोटिंग आई है वो इस तरीके से आई है कि 90 वोट्स मिले हैं समर को, 120 वोट्स मिले हैं रेनी को और 150 वोट्स मिले हैं विंटर सीजन को. नाउ यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चंस. विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स? सबसे ज़्यादा वोट्स यहाँ पे किसको मिले हैं? 90, 120, 150. विंटर गॉट द हाइएस्ट नंबर ऑफ वोट्स. सो हम यहाँ पे लिखेंगे विंटर सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स विच इज़ 150. फाइन. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर. अब आपको सेंट्रल एंगल निकालना है. देखो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू फाइंड आउट द सेंट्रल एंगल. इट इज़ द रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई 360 डिग्री. दिस इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द सेंट्रल एंगल. तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम? टोटल वोट्स पहले हम निकालेंगे. टोटल वोट्स यहाँ पे कितने हैं? टोटल इन सब का टोटल करना होगा 90, 120 एंड 150. ठीक है. इसका अगर आप टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 360. 360 क्या है आपका? टोटल वोट्स हैं. फाइन. टोटल वोट्स आपको मिल गए इधर. अभी क्या करना है? सेंट्रल एंगल निकालना है. तो समर सीज़न का हम कैसे निकालेंगे? देखो सेंट्रल एंगल समर सीज़न का निकालने के लिए जो भी समर एंगल में जितने वोट्स मिले हैं वो अपॉन टोटल वोट्स मल्टीप्लाई 360 डिग्री. क्यों? क्योंकि 360 डिग्री इसका कंप्लीट एंगल है. क्या करेंगे यहाँ पे देखते हैं. देखो समर का आपको निकालना है. समर का क्या निकालना है? समर सेंट्रल एंगल निकालना है. तो क्या करेंगे? समर में कितने वोट्स मिले थे? 90 वोट्स मिले थे. फाइन. यहाँ पे लिख लेते हैं समर में 90 वोट्स मिले. देन रेनी में कितने वोट्स मिले आपको? रेनी में यू गॉट 120 वोट्स एंड विंटर में 150. सो रेनी में 120 वोट्स एंड विंटर सीजन में 150 वोट्स. फाइन. नाउ समर का आपको सेंट्रल एंगल निकालना है. तो समर का सेंट्रल एंगल किससे निकालेंगे? समर में जितने वोट्स मिले हैं वो अपॉन टोटल वोट्स कितना है? टोटल वोट्स इन सबको हमने प्लस करा था तो हमें मिला था 360 मल्टीप्लाई. जब भी सेंट्रल एंगल निकालते हैं तो कंप्लीट एंगल से मल्टीप्लाई करने का, तभी आपको सेंट्रल एंगल मिलेगा. तो कंप्लीट एंगल क्या होता है? पाई चार्ट में कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है. ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन करा था. सो 90 1 जा 90, 90 4 जा 360. नाउ 360 डिग्री अपॉन 4, 360 डिग्री अपॉन 4 दैट इज 90 डिग्री. फाइन. इसका मतलब समर का जो सेंट्रल एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री. सो दिस वॉज अबाउट समर. लेट अस फाइंड आउट फॉर विंटर सेंट्रल एंगल. विंटर सेंट्रल एंगल हम कैसे निकालेंगे? विंटर के वोट्स फाइन. टोटल वोट्स कितने हैं? 360 मल्टीप्लाई सेंट्रल एंगल निकाल रहे हैं तो 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ 0 0 कैंसल और यू कैन कैंसल दिस फुल्ली. 360 360. ओके. तो यहाँ पे 150 बचेगा ना. 150 1 जा 150. डिग्री लगाएंगे क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? एंगल निकाल रहे हैं. ओके. हियर ऑल्सो डिग्री बिकॉज वी आर फाइंडिंग द एंगल. सो विंटर का सेंट्रल एंगल कितना आया? 150 डिग्री. देन वी विल फाइंड आउट फॉर रेनी सेंट्रल एंगल.
सो रेनी में कितने वोट्स मिले? 120 वोट्स मिले। टोटल कितना है? 360। एंगल निकाल रहे हैं इसलिए 360 डिग्री। 360 कैंसल, 120 डिग्रीज बिकॉज यू आर फाइंडिंग आउट द एंगल। सो 120 डिग्रीज वोट्स किसको मिले हैं? 120 डिग्री इज़ द एंगल। वोट्स आपके कितने हैं? 120। और एंगल कितना आया रेनी का? सेंट्रल एंगल इज 120 डिग्री। सो दिस वॉज ऑल अबाउट नंबर 2. Fine. And in the third question you have to construct the pie chart according to this angles what you have calculated in question number 2. So how to draw this pie chart? See, draw 3 radii in such a way that it makes angle of 90 degree, 120 degree and 150 degree at the center. आपको क्या करना है? प्रोटेक्टर की मदद से, प्रोटेक्टर क्या होता है? जिससे हम एंगल्स बनाते हैं, जिससे हम एंगल का मेज़रमेंट करते हैं। तो प्रोटेक्टर की मदद से आपको एंगल्स कंस्ट्रक्ट करने हैं। ठीक है, देखो ये हमने पहले सर्कल बनाया, एक कन्वीनियंट रेडियस, कोई भी रेडियस लेके आप सर्कल ड्रॉ कर लो। उसके बाद वहाँ पे हम एक सेंटर पॉइंट कंस्ट्रक्ट करेंगे। जब रेडियस बनाएंगे तभी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल लेना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, एंड देन यू हैव टू टेक द एंगल ऑफ 120 डिग्री, एंड देन जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो ऑटोमेटिकली आपका कितना आ जाएगा? 150 डिग्री। सो दिस इज़ समर सीजन, दिस इज़ रेनी सीजन एंड दिस इज़ विंटर सीजन। क्योंकि हमने अभी कैलकुलेशन करा, उसमें समर सीजन का कितना आया? 90 डिग्री, रेनी सीजन का कितना आया? 120 डिग्री, और विंटर सीजन का कितना आया? 150 डिग्री। तो समर सीजन का हम बनाएंगे 90 डिग्री, उसके बाद यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे और 120 डिग्री पे मार्किंग करेंगे। तो ये आपका 120 डिग्री किसका हो गया? रेनी सीजन। एंड लास्ट वन इज़ ऑफ विंटर सीजन। एंड देन यू हैव टू डू द गिव द नेमिंग्स एट लास्ट, और एंगल का भी हम नेम दे देंगे, 90 डिग्री, 120 डिग्री एंड 150 डिग्री। So this was all about how to make pie charts, how to find out the central angle. I hope everybody understood this properly, and if you have any queries you can comment me in the comment section. Thank you.